Good evening to one and all. Hello everyone. A very warm welcome to yet another episode of our WOW series, Words of Wisdom. This initiative, led by CA students, brings together distinguished chartered accountants across different domains to share their journeys, experiences, and pearls of wisdom with us. Before we dive in, let me quickly introduce to the Winners Circle. It's not just a community, but a thriving ecosystem of CA students, a place that fosters learning, networking, and collective growth. And true to our tagline, from peers to professionals, we aspire to contribute our profession in a way that lasts not for days, but for decades ahead. And here's something exciting. We have launched our very first project, an anthology named Education. This initiative gives CA students from all corners of the country to pen down their thoughts and see their work published in our very own anthology. So don't forget to stay tuned with us in all our social media platforms for more updates, opportunities, and inspiring initiatives coming your way. So now, today we are truly fortunate with us to have a dynamic CA, LLB, CMA, NISM, and DISA certified educator and finance thought leader with proven expertise. None other than CA Devesh Khivsarasar. He is a fellow chartered accountant with 14 years of experience and expertise in field of taxation, audit, and business finance. He is also a SEBI market trainer, YouTuber, and a skill analyst. Sir is also founder of Devesh Khipsara and Company, a faculty at ICI and a SEBI market trainer. Sir, we are truly honored to have with us as a part of our WOW series. Thank you so much for sparing your valuable time with us today. I would now request further the TWC members to take this event forward following the interview session. So, hello, sir. Thank you, Vedant, for your kind words. And I would like to ask you, sir, you have cleared your CA in very first attempt and went on a pursuing multiple degrees. So what kept you motivating to learn beyond the CA? Okay, see, first of all, I don't have a very dramatic story to tell you, right? I was just a average student. जो बहुत सारे लोग वही होंगे मेरे हिसाब से ड्रामेटिक स्टोरी सिर्फ कुछ लोगों का होता है सो बेसिकली एक एवरेज स्टूडेंट था मैं फिर आफ्टर 10th स्टैंडर्ड आई हैड टू ऑप्शंस frankly speaking I had two options firstly I wanted to be a computer engineer or a chartered accountant only these two options were there for me मुझे ये दो ही चीजें पसंद थी या तो सीए बन जाऊं या कंप्यूटर इंजीनियर तो आई एम अ 11th-12th साइंस स्टूडेंट ओके तो साइंस था मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट था मैं देन 12th आते आते और फिर जैसे आप लोगों को पता होगा जो मारवाड़ी गुजराती जैन फैमिलीज होती है तो फैमिली में बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं रिलेटिव्स में फ्रेंड्स में राइट तो उनको देख देख के मेरा इंटरेस्ट सीए की तरफ ज्यादा हो गया फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग सो आफ्टर 12th आई शिफ्टेड टू चार्टेड अकाउंटेंसी एंड देन जॉइंड दिस कोर्स इट वाज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे अप्स डाउन्स रहे बट देन अगेन धीरे धीरे करके उसमें आगे बढ़े सीए आफ्टर सीए देन सीए होने के बाद I joined a CA firm for getting some hands-on experience into direct taxes and litigations and everything. तो वहाँ पे litigation मतलब जो scrutiny assessments होते हैं अपील्स होते हैं तो उस टाइप के litigations और ये matters की वजह से थोड़ा सा लगा कि LLB कर लेना चाहिए LLB would be beneficial for it. तो LLB किया फिर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होने की वजह से थोड़ा वेल्थ मैनेजमेंट भी सीखना था सो आई कंप्लीटेड माय CWM फिर बीकॉम तो सीए के साथ ही हो जाता है देन मास्टर्स डिग्री परस्यू करना था तो एमकॉम किया फिर डीसा किया इंफॉर्मेशन सिस्टम्स से मतलब इंटरेस्ट तो पहले से था ही कंप्यूटर्स में सो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट सीखना ही था तो डीसा किया देन जब हम क्लाइंट्स के लिए काम करते थे तो आपने इंडस्ट्रीज में देखा होगा कि ISO 9001 सर्टिफाइड इंडस्ट्री है और ऐसा लिखा होता है तो क्यूरियोसिटी जगी कि व्हाट इज ISO 9001 और उसके बारे में पढ़ना शुरू किया
तो लगा कि ये एक अच्छा एरिया ऑफ वर्क है, तो उसका लीड ऑडिटर का एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है तो वो किया। सो अभी हम आईएसओ कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को कि बिजनेस को, प्रोसेसेस को कैसे एसओपीज वगैरह बनाते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मींस आपके बिजनेस को मैनुअल से प्रोसेस ड्रिवन कैसे किया जाए, राइट। तो उसका भी कंसल्टेंसी होता है। तो ऐसे करते करते धीरे 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 जैसे जैसे वर्क का स्कोप बढ़ते गया, एडिशनल लर्निंग करते गए, और इस तरीके से सब ये जो डिग्रीज आप देख रहे हो ये पाइल अप हो गई। अभी आगे और भी पढ़ना है और इच्छा है अभी तो आगे, राइट। सो मोटिवेशन की बात तो ऐसी है, देखिए मोटिवेशन डेली लगता है, ठीक है। मोटिवेशन अगर जैसे आज मैंने किसी का लेक्चर सुन लिया, मेरे टीचर ने कुछ एक लेक्चर दे दिया, मैंने यूट्यूब पे देख लिया, तो वो जो मोटिवेशन है वो टेम्पररी होता है। यू ऑल वुड एग्री विथ मी कि वो मोटिवेशन टेम्पररी होगा, 2 दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा, फिर वापस हम जैसे थे वैसे हो जाएंगे। सो मोटिवेशन इज लाइक, आई ऑलवेज से मोटिवेशन इज लाइक टेकिंग अ बाथ, है ना, रोज करना जरूरी है ये। तो आपको वो अंदर से आना चाहिए मोटिवेशन, है ना। तो जब आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे ना तभी एक्चुअल मोटिवेशन है वो। अदरवाइज क्या होता है, बाहर से जो मोटिवेशन है इट जस्ट पुशेस यू, से आपको पुश करेगा वो, बट बेस्ट थिंग इज सेल्फ मोटिवेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको कुछ भी करना है तो वी हैव टू बी रियली वेरी मच मोटिवेटेड। Thank you, sir. That was really insightful. So, before we move ahead, let's go back to 2011 for a moment. You took the bold step of starting your own firm back then. I'm really curious as to what were the early challenges you faced. How did you overcome them? First of all, as I said, I cleared my SCA in November 2010 attempt, right? जो November 2010 का attempt था, in that attempt I cleared my chartered accountancy. Then for say some 10 to 12 months, I joined a senior chartered accountant to learn some skills like litigations and all, जो थोड़ा सीखना था मुझे। I joined him and I am very thankful to him कि उन्होंने मुझे काफी सिखाया। I take this opportunity to thank him. Then I tried कि हमेशा से मेरी इच्छा थी, it was my desire to start my own practice, right? पहले से था ये मेरे मन में कि भले छोटा भी करेंगे तो खुद का कुछ करेंगे, ऐसा पहले से मन में था। सो इट वाज लाइक कि ठीक है अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते टाइम तो एज यू नो कि ज्यादा कोई क्लाइंट्स होते नहीं है, राइट। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन यू हैव टू टेक अ स्टेप, राइट। स्टार्ट करेंगे तभी कुछ होगा। मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरे पास पहले कुछ क्लाइंट्स आ जाए फिर मैं फॉर्म चालू करूं, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट वे, मतलब उल्टा होता है। आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा फिर लोग आपसे जुड़ेंगे। सो पहले एक फॉर्म स्टार्ट करी, फॉर्म स्टार्ट करते धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू करी, फिर जैसे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कुछ फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, उनके थोड़े थोड़े धीरे धीरे काम आते हैं। कुछ काम आपको फ्री में भी करने पड़ते हैं, राइट, बिकॉज रिलेशंस होते हैं, बट अपने को भी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है उस टाइम पे। सो धीरे धीरे करते करते, बिल्डअप करते करते, फिर आज ये स्टेज आ गई कि मुझे TWC में आने का मौका मिला। Wow, sir, it's like कि the winner circle means यहाँ पे भी लोग सिर्फ सीखने ही आए, like to evolve and to learn about something. Definitely. So moving forward, like sir, you have a specialization in tax, audit, project finance in last 14 years. Like तो इसमें से which was the area that shaped you? इसमें से कौन सा एरिया था जिसने आपको ऐसे shape किया? Like what was your kind of area? My interest for practicing as in like most interesting topic for me was direct taxes. I like to help my clients in direct taxes. Indirect taxes भी ठीक है, but direct taxes में ज्यादा पसंद आता है मुझे प्रैक्टिस करना। Then secondly मुझे wealth management field में बहुत स्कोप भी लगता है इन फ्यूचर भी और करंटली भी, क्योंकि हमारे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, राइट। मतलब आप अगर देखेंगे तो CA स्टूडेंट्स और इवन जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं या कॉमर्स से पढ़ के भी जो आगे जॉब करते हैं या जो भी करते हैं अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आई वुड से, तो उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रमाण बहुत कम होता है। सो फाइनेंशियली लिटरेट लोगों को करना और उनके वेल्थ को मैनेज करना, ये फील्ड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है।
basically. Yes. Sir, as you said, financial literacy has a strong impact. So you yourself, as through your YouTube channel and social media, have been simplifying finance for a much wider audience. Why do you feel financial literacy is so critical in this world? See, whatever you do, मैं आपको पूछूं आप सीए क्यों कर रहे हो? Okay, the obvious answer would be to earn money, right? But only earning won't help you, right? अगर आपको अपना जो स्टेटस है वो इंक्रीज करना है, फाइनेंशियली आई एम टॉकिंग, राइट? स्टेटस अपने को इंक्रीज करना है, या आज किसी की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, उसको अपने फैमिली को ग्रो कराना है, ठीक है, फाइनेंशियली इफ दे वांट टू ग्रो, सो सिर्फ अर्न करने से कुछ नहीं होता है, राइट? अर्निंग के साथ साथ मनी सेव करना, सेव करने के साथ उसको सही जगह इन्वेस्ट करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. You cannot create wealth by active income. Wealth is only created by passive income. ठीक है? आप सोच रहे हो कैसे? Why is Mukesh Ambani the richest person? Because he holds shares in Reliance Industries Limited. Therefore he is richest. उनके नेटवर्थ में सबसे बड़ा पोर्शन क्या होगा? RIL के shares, right? Same way for Adani. Same way for anyone you know. May it be Elon Musk, Jeff Bezos, anyone, right? ये क्यों होता है? This is because of passive income. So learn to build passive income. Only active income won't help. And to build a passive income, you need to invest money. First, you have to have some active income, and through that active income, you have to build some passive income. और जब आपकी passive income अच्छी हो जाएगी ना, तो आपकी wealth create होती है, क्योंकि active income से फिर आपका घर चलता है और पैसिव इनकम से घर बनता है, राइट? सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत इसीलिए है ना कि आपको ये समझना चाहिए कि सेविंग करना है, सेविंग करके उसको प्रॉपरली बजटिंग करना है, बजटिंग करके उसको प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करना है, ताकि एटलीस्ट यू बीट इन्फ्लेशन. इफ योर इन्वेस्टमेंट कांट इवन बीट इन्फ्लेशन, देन इन द एक्चुअल सेंस, रियल सेंस, यू आर लूजिंग मनी, राइट? सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी अपना जो भी मेहनत है, यू कैनॉट रीच टू योर डेस्टिनेशन. आपका जो गोल होता है, एक फाइनेंशियल गोल होता है ना सबका, तो बिना लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी के यू कैनॉट अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स. सो इट इज रियली, मतलब आई फील इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये स्कूल के करिकुलम में होना चाहिए कहीं. That truly, मतलब आपने जो कहा, it's truly like a heart touching. Means what if influencer is like, we can say. So like now, sir, you have been teaching in the ICI from last more than a decade. So what do you enjoy the most with future finance professional? देखो, एक तो मैं आप लोगों में खुद को देखता हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है. यंगस्टर्स के साथ रहने से मैं यंग फील करता हूँ, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. प्लस स्टूडेंट्स का जो एंथुजियाज्म होता है, नो, स्टूडेंट्स जो लव देते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है. प्लस मेरा जो नॉलेज है वो मैं स्टूडेंट्स को दे पाता हूँ, उसका मुझे सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दुनिया में कुछ लेके तो नहीं जाएगा, राइट? तो मुझे जितना नॉलेज है, मैं अगर उतना दे पाऊँ तो वो मुझे बहुत पसंद है. हॉबी है मेरा वो. So as a hobby, as a passion, I do teaching at ICI. That's it. मतलब मेरा पैशन है, हॉबी है, तो और मुझे बहुत मजा आता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने में. So I really enjoyed a lot. Yes, sir. Also, over the years, you have stepped into the investment side of finance as a SEBI Empowered Securities Market Trainer and Certified Wealth Management. What was it about stock market and wealth management that really drew you over? स्टॉक मार्केट में ना एक्चुअली बहुत पहले से इंटरेस्ट था मुझे, बट ड्यूरिंग द कोर्स, जैसे अभी 11th में अपन 2011 में जब मैंने वर्किंग स्टार्ट किया एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो टाइम पे मतलब मोटिव वाज कि अपने को अभी फर्म सेट करना है, अपना फर्म है, प्रैक्टिसिंग करते हैं अपन, तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से ध्यान हट गया था. बट ड्यूरिंग द कोर्स जैसे जैसे फिर अब टाइम मिलने लगा, तो वो होता है ना, एक पुराना प्यार वापस आता है.
तो वैसा वाला कुछ हो गया। तो स्टॉक मार्केट में वैसे भी मतलब पहले से ही मुझे काफी इंटरेस्ट था। सो स्टॉक मार्केट में I am also certified technical analyst. Okay, so technical analysis. I am also author of the book Listening to Patterns: The Art of Reading Price Action. Okay, so ये ई बुक भी है मेरा, फ्रीली अवेलेबल है। सो ये सब में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से फिर उसमें डेरिवेटिव सेगमेंट आ गया। तो डेरिवेटिव जो ऑप्शन फ्यूचर्स, तो ये बहुत ज्यादा मुझे इंट्रिगिंग लगा कि यार इसमें मतलब जो लिवरेज होता है, तो लिवरेज को किस तरीके से अपन अच्छे से यूज करके एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सकता है, राइट। सो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा। एंड देन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू नो हाउ टू एक एज होता है आपको हमेशा कि बैलेंस शीट्स रीड करना, उनके फाइनेंशियल्स रीड करना, कंपनी के बिजनेस को समझना। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर बाय डिफॉल्ट एक एज है एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टर्स। सो आई थॉट व्हाई शुड नॉट वी यूज इट ना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पैसिव इनकम बनाना है। पैसिव इनकम कहाँ से बनेगा? आप और मैं, जैसे हम सीए बनेंगे, कोई जॉब करेगा, कोई प्रैक्टिस करेगा, हमारा पैसिव इनकम बनेगा कहाँ से? यही तो जगह है ना जहां से बन सकता है। सो इसीलिए वेल्थ क्रिएट करना है बेसिकली, इसीलिए इसमें ज्यादा इंटरेस्ट बन गया। ट्रूली सर, मैं भी आपसे कुछ अभी थोड़ी इनसाइट्स लूंगा, क्योंकि मैंने भी अभी जस्ट एनआईएसएम से इक्विटी डेरिवेटिव क्लियर किया, तो इट विल बी लाइक रियली ग्रेट, एक इंटरेक्टिव, वो और एक सेशन हम लोग करेंगे श्योरली सर। पक्का पक्का, डन। डन सर। तो सर लाइक इफ आई आस्क टू यू, व्हाट इज द विनर वर्ड्स मीन टू यू? The word winner, see, it can have various definitions, but actual winner is the person, who is satisfied. ठीक है, जो पर्सन सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड का मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसने और कुछ अचीव नहीं करना चाहिए, पर उसको जो मिला उसके लिए उसके अंदर ग्रैटिट्यूड है, और वो अचीव करने की कोशिश करता है, पर जो मिलता है उससे सेटिस्फाइड होता है। क्योंकि देखो सक्सेस का एज सच कोई डेफिनेशन है ही नहीं, राइट। क्योंकि मुझे सक्सेस कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं, ऐसा कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है सक्सेस नाम का। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, ठीक है। हम सोचेंगे कि मेरे को ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, आई विल फील सक्सेसफुल। वो मिल जाता है तो हमें और कुछ इच्छा हो जाती है कि ये भी मिलना चाहिए, देन आई विल बी सक्सेसफुल। सो ऐसा नहीं है। तो विनर हर वो आदमी है जो सेटिस्फाइड है, उसको जो मिलता है उसके लिए उसके अंदर ग्रैटिट्यूड है, और वो कुछ और अचीव करने की कोशिश करता है, और जिसके अंदर एक नेवर से डाई एटीट्यूड है, वो विनर है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप गूगल पे सर्च करना, एडी हॉल एक वेट लिफ्टर है, ओके। उसने डेडलिफ्ट किए 500 केजीज। डेडलिफ्ट मतलब आपको ऐसे खड़ा रहना है, नीचे वेट होता है, जैसे हम ओलंपिक्स में देखते हैं ना डेडलिफ्ट, आपने सुना होगा। तो वेट को लिफ्ट करना पड़ता है। तो ये लिफ्टेड 500 केजीज। जितने भी साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, वो बोलते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में ह्यूमन बॉडी कैन नॉट लिफ्ट 500 केजीज, ठीक है। उसके नाम पे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसको ये पूछा गया कि अगर पॉसिबल नहीं है नॉर्मल सिचुएशन में, तो ये आपने किया कैसे? तो वो बोला, मैंने ऐसा इमेजिन किया कि वो जो मेरा जो सन है, मेरा जो बेटा है, वो एक कार के नीचे आ गया है, और मेरे को वो कार उठाना है। उसका अगर आप वीडियो देखेंगे तो जब उसने वो वेट उठाया था, तो उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, उसके नोज से पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है जब वो वेट उठा रहा है। मतलब ही वॉज इमेजिनिंग कि मेरा बच्चा कार के नीचे आ गया है और अब मेरे को उसको बचाना है। तो उस टाइम पे उससे वो काम हो गया। तो यू कैन कंट्रोल योर माइंड। इस चीज से ये जो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि योर माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। तो यू कैन फूल योर माइंड एंड यू कैन कंट्रोल योर माइंड। इसीलिए बोलते हैं ना, पॉजिटिव सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छी अच्छी बातें करो। तो इससे क्या होता है? इससे यही होता है, माइंड को एक्चुअल और इमेजिनेशन समझता नहीं है।
Yes, sir. Moving ahead, you also mentored and guided countless students and young professionals on the way. In your view, how important it is to surround yourself with the right people, your own winner circle, while growing in this profession? यस, एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, प्रॉक्सिमिटी इज पावर. ओके, प्रॉक्सिमिटी इज पावर का मतलब क्या होगा? आपके आसपास जो लोग हैं उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत आता है. आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, आप अगर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, है ना, हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो आपको भी फिर कहीं ना कहीं लगने लगता है कि हाँ शायद मैं ये नहीं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना. और अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको पुश करते हैं, आपके बाउंड्रीज को पुश करते हैं, यू नो, आपको मोटिवेट करते हैं कि यस यू कैन डू इट, ट्राई इट. देखो ना, जब छोटा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है ना, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी, मतलब लोग भी कैसे दोगलापन देखा ना आपने, शार्क टैंक वाला दोगलापन. तब जब छोटा बच्चा होता है, वो जब चलना सीखता है, फर्स्ट टाइम चलता है, तो वो गिर जाता है चलते चलते, राइट. तो जब उसको एनकरेज करते हैं पेरेंट्स, उठ जा बेटा, यस तू चल सकता है, कम ऑन चल सकता है, ताली बजाते हैं अपन, सब कुछ करते हैं, फिर वो बच्चा धीरे धीरे चलना सीख जाता है. वही बच्चा जब बड़ा होता है और वो कोई सब्जेक्ट में से वीक है, वो से साइंस में वीक है, तो जब उसको मोटिवेट नहीं करते, फिर उसको डांटते हैं, "ए, तू तो गधा है, तेरे को आता ही नहीं साइंस, देखो बाजू वाले कोई बच्चे को, शर्मा जी के बेटे को कितने मार्क्स मिल गए, तेरे को नहीं मिल रहा है." वहां पे उसको मोटिवेट करेंगे. वही छोटा बच्चा था, जब फर्स्ट टाइम वॉक किया था, गिर गया था, तो उसको एनकरेज कर रहे हैं. जब वो साइकिल चलाते चलाते फर्स्ट टाइम गिर गया, तो उसको एनकरेज कर रहे हैं. और जैसे जैसे फिर हम बड़े होते हैं, तो हमारे को डांटने लग जाएंगे, डिमोटिवेट करने लग जाएंगे. तो अच्छे लोगों के साथ सराउंड करना, अच्छे फ्रेंड्स के साथ सराउंड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. Yeah, sir, it's truly motivating. Like your words are so motivating. So, like, if I want to ask you, like, looking back your career, was there any turning point, or there is any setback that tested your resilience, your patience, and shaped your journey over the years? Yes, one turning point in my journey was 2020 COVID, right? That मतलब जिसने मेरे प्यार से मुझे फिर से मिला दिया स्टॉक मार्केट से. सब कुछ बंद था ना, एक ही चीज चालू थी, स्टॉक मार्केट. सो पहले तो थोड़ा थोड़ा ही करते थे, बट वो टाइम से आई एम जस्ट इनटू इट, फुल्ली इनटू इट, राइट. सो COVID was one turning point which I can remember right now. It literally changed my whole profession or whole career, I would say. Not the profession, but the career. It shaped my career. Yeah. Yes, sir, that was really insightful. And finally, for all the young aspirants who are still building their own winner circle, what's the one message you would like to give them? Sorry, could you repeat the question? Yes, sir, for all the young aspirants who are still building themselves, what's that one message you would like to give them? Yeah, the one message would be, I just break it down into 4 parts. Number 1, as we already discussed, proximity is power. Second, I would like to tell you, growth starts outside the comfort zone. Okay, your growth will start outside your comfort zone. ठीक है, स्टॉक मार्केट वाला आदमी ना, स्टॉक की भाषा में बताओ ना, स्टॉक अगर एक ही जगह चल रहा है ना, तो उसमें पैसे नहीं बढ़ेंगे. जब तक वो स्टॉक एक रेंज से ऊपर ब्रेकआउट नहीं होगा उसमें, तो पैसा नहीं बनेगा, प्रॉफिट नहीं बनेगा. वैसे ही अगर आप एक बॉक्स के अंदर हो, राइट, अपने कंफर्ट जोन में हो, तो आपका ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगा. सो ग्रोथ ऑलवेज स्टार्ट आउटसाइड द बॉक्स. सो हमेशा ये अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना है, और कुछ कंफर्ट जोन के बाहर की चीजें आप करोगे तो आपका जो कंफर्ट जोन है ना, वो बढ़ते जाएगा. अभी अगर इतना सा है तो धीरे 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 इट विल एक्सपांड. ओके. थर्ड, मैंने आपको बताया कि माइंडसेट. मैंने आपको एडी हॉल का एग्जांपल दिया, लाइव एग्जांपल, ठीक है, कि कैसे उसने जस्ट इमेजिनेशन से वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव कर लिया, जस्ट फ्रॉम इमेजिनिंग, राइट, कि गाड़ी के नीचे मेरा बच्चा है तो गाड़ी उठा लूंगा मैं, एंड ही लिफ्टेड 500 kgs.
सो वो तीसरा पार्ट माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पे अगर आप ध्यान देते हैं ना, आपको बाकी पढ़ाई तो करना ही है, ठीक है। सीए कर रहे हो तो पढ़ाई तो बहुत करना है, नो डाउट इन इट। वो आपके कोचिंग वाले सर है, जो भी आप जहाँ भी क्लासेस वगैरह जाते हैं, वो सब आपको पढ़ाएंगे, आपको खुद को पढ़ना है और आपको खुद को ही ज्यादा मेहनत करना है, राइट। सेल्फ स्टडी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर इन पॉइंट्स पे अगर हम ध्यान देते हैं ना, तो पढ़ाई इजी हो जाती है, राइट। इट विल हेल्प यू। तो यही 3 पॉइंट्स में ब्रेक कर देते हैं कि ये 3 चीजों का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है एज अ यंगस्टर टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। ट्रूली अंडरस्टैंडेबल सर, ये सारे पॉइंट्स तो मैं नोट डाउन करने वाला हूँ अभी. So sir, my last question will be, and then we will move forward to the questions that are been in the chat box. So Okay. like, what your thought about our anthology? What your thoughts about the winner circle, about our initiative? योर इनिशिएटिव इज ट्रूली अमेजिंग, राइट। क्योंकि एक फोरम मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अंदर स्किल्स होते हैं ना, पढ़ाई के अलावा बहुत सारे स्किल्स होते हैं। कुछ लिखने का होता है, कोई पोएट्री लिखता है, someone can write drama, someone can like articles, thesis, fictional stories, बहुत सारे अलग अलग लोगों के अंदर हुनर होता है, लोगों के अंदर स्किल सेट होता है। तो उसको प्रोजेक्ट करने के लिए सीए में ना कोई कॉलेज तो है नहीं कि कॉलेज के मैगजीन में कुछ आ रहा है। कॉलेज में अपने को अलग अलग डेज होते हैं ना, कॉलेजेस में आपके फ्रेंड्स होंगे एमबीए कॉलेजेस में, तो वो हर महीने 3-4 दिन सेलिब्रेट करते हैं, रोज डे, स्टारी डे, चॉकलेट डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रोज का कोई ना कोई डे होता है उनका। तो वहां पे उनको बहुत सारे स्किल्स प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, सीए लोगों को नहीं मिलता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है आपने, तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एंड आई रियली विश कि जैसे सीए फॉर्म्स में पीडब्ल्यूसी फेमस है ना, प्राइस वाटर हाउस इनको, वैसे आपका चैनल हो जाएगा टीडब्ल्यूसी, डेफिनेटली। Yes, sir. Moving on to the next question from Vedant. What will be your advice to aspirants investing in stock market? How to grow their invest and about the right tools to use to analyze? ओके, देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले बिना स्टडी के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप। मतलब इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, राइट, ट्रेडर भी बनना हो या इन्वेस्टर बनना हो, विदाउट नॉलेज किसी ने बोल दिया और मैं ये कर रहा हूँ, उसमें मजा नहीं आएगा, ना ही आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स पे कन्विक्शन आएगा। जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा, आप इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉफिट को राइड नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सिंपल है पर इजी नहीं है। इट्स सिंपल, बहुत इजी है ना, मोबाइल से सब हो जाता है, तो इट्स वेरी सिंपल, बट इट्स नॉट दैट इजी एज इट लुक्स, ओके। तो जैसे अब सीए की पढ़ाई करोगे 4-5 साल, है ना, लॉ की पढ़ाई करनी पड़ती है 4-5 साल, वैसे स्टॉक मार्केट की भी पढ़ाई करनी पड़ती है। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। तो उसमें कई टाइप्स के एनालिसिस होते हैं, या फंडामेंटल एनालिसिस, या टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको ये सब आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आप वहां पे इन्वेस्टमेंट में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट आई वुड जस्ट सजेस्ट यू टू लर्न। उसको सीख के करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, अदरवाइज उतना लॉन्ग टर्म वो चीज चलेगी नहीं, राइट। तो सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सीख के आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते विद अ स्मॉल कैपिटल। पहले छोटे कैपिटल पे यू कैन स्टार्ट एंड देन यू कैन बिल्ड ऑन इट। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यू कैन ऐड ऑन योर कैपिटल टू इट। Yes, sir. That was very insightful. Moving on to the next question by Yashvi Vora. Since you have your own firm, what do you think about articles going on for industrial training? आर्टिकल्स कैन डेफिनेटली गो ऑन टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अभी जैसे जिनका एम है इंडस्ट्रीज में जॉब करना, राइट, कॉर्पोरेट में जाना है, आगे कुछ कॉर्पोरेट में वर्क करना है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको उस इंडस्ट्री में एंट्री मिल जाती है। आगे आपका जॉब सर्च का टाइम भी कम हो जाता है। मोस्टली वो इंडस्ट्री में ही आपको जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो डेफिनेटली जिनको भी इंडस्ट्री में जाना है उनके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है दैट यू कैन टेक फॉर 1 ईयर। आई थिंक लास्ट ईयर में आप वहां पे डेफिनेटली जा सकते हो।
Yes, sir. Moving on. We have a question from Derya. How to manage studies and relationship? उसको मैनेज क्या करना है, मतलब उसमें मैनेज क्या करना है? देखो, पढ़ाई करना जरूरी है, राइट? उसको छोड़ नहीं सकते आप। अब पढ़ाई छोड़ दोगे, सीए नहीं बनोगे, तो वो भी छोड़ देगी, ठीक है? तो पहले पढ़ाई करना जरूरी है। और इफ यू आर इनटू अ ट्रू रिलेशनशिप, शी विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, राइट? वो भी सीए स्टूडेंट होगी तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। बट अगर वो सीए स्टूडेंट नहीं होगी तो भी आप उसको समझा सकते हो, शी विल अंडरस्टैंड इट। और थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होता। You have to give a bit of time, but she will understand if the relationship is true, right? Yes, sir. Totally agree. So I guess the questions from our chat box is done. I would like Vedant to deliver the vote of thanks. Yes. So as we come to the end of this insightful session, it's my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of the entire organizing team of TWC. First and foremost, a heartfelt thanks to CA Devesh Khilsara sir for his presence today. Sir, the session was really very amazing and inspiring. And about the things you have mentioned, it was very quite real and direct, just not about the glamour after CA, but also about the hardship that you have faced in your professional life. Also, you have mentioned about the passive income कि एक्टिव इनकम से घर चलता है बट पैसिव इनकम से घर बनता है और सीए का घर तो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए. And proximity is power. So your circle decides your power. Great rule to apply in life. It was indeed a great time with you today. I would also like to announce that once the anthology, that is Education, is published, the Winner's Circle team will be providing Devesh sir a token of gratitude for being the TWC ambassador. I would sincerely thank the Winner's Circle for organizing this wonderful event and giving all of us an opportunity to learn, grow, and connect. And last but not the least, a very thank you to each and everyone present today in the audience. Let's continue to learn, uplift one another, and grow together. And that's it for the time being. It's me, Vedant Devdar, signing off. Thank you all for joining this session. Thank you. Thank you, sir. Thank you so Thank much, you. sir, for joining you, sir. for today. ठीक था ना कि नहीं? अरे सर, it was so grateful, sir. So grateful, sir. एकदम ओपी था. बाप पर रे, सबसे बढ़िया आपका ही गया, बहुत अच्छा मस्त था, हुआ, सर. एकदम मजा आ गया. ऐसा Best, सबको sir. बोलता है ना, सार्थक ऐसा सबको नहीं बोलता नहीं है ना? सर. ना ना ना, सच्ची सबसे बढ़िया Just आपका kidding. गया है.